So we consider Dirichlet problem for a circle. For a circle. So we take Laplacian of u, which is uxx plus uyy in Cartesian coordinate. So this is inside the circle, and at the boundary u equals to h theta. And what is the boundary? This is the boundary of circle. Okay, so this is your domain boundary, and this is in interior. And of course, we will take parametric form. So initial condition is already in parametric form. So u equals to h of theta, where a is the radius of circle and h is the boundary data. So we use separation of variable in polar coordinate. So u equals to r r theta theta. Okay, so or we can take different notations, like you can take f of r g of theta. Okay, so likewise Cartesian coordinate here, one is a function of only r, and another one is a function of theta only. Okay, जैसे वहां पे आप करते थे x is a function of x and y is a function of y. Already textbook uses, they write r, so big theta function of theta. So to avoid any confusion in notation, just I'm writing f, which contain only r, and another function g, which only contain theta. Okay, so we already yesterday we converted this equation into polar form. देखा था ना हमने कल? So we use directly polar form urr plus 1 by r ur plus 1 by r square u theta theta. So this is polar form. So fit all derivative here. Okay, so what will be urr from this relation? So double derivative of f. Okay, f double dash g as it is plus 1 by r. First derivative with respect to r, that is f dash r, and g as it is. Then 1 by r square, g f as it is, g double derivative. Okay, so now we separate the variable. So just divide this equation with fg and multiply with r square. ये r square है ना, इसे मल्टीप्लाई कर दो और fg से डिवाइड कर दो, so that you can separate the variable. फर्स्ट टर्म को fg से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? r square से मल्टीप्लाई. So first term will be r square f double dash divided by f. Then middle term f dash by f. So automatically variable will be separated.
ओके, तो हमने क्या किया, डिवाइड विद एफ जी एंड मल्टीप्लाई विद आर स्क्वायर. So you got equals to minus g double dash upon g. Now, as as we have seen in separation of variable, left hand side only depends on r, and right hand side only depend on theta, and so both sides are constant. Say that constant is lambda. So we need to solve 2 OD in polar coordinates. So second one is simple. So firstly, I'm solving this second one, which is function of theta. So g double dash plus lambda theta g equals to 0. और periodicity भी है इसमें, एंगल है ना, रिपीट होगा. So theta plus 2 pi, that is equals to g of theta. And this problem we solved earlier, if you remember, x double dash plus lambda x equals to 0. Okay, that is a similar eigenvalue problem. So the eigenvalues and eigenfunctions of this problem are lambda and m square, and of g of theta equals to a cos n theta, plus b of sin n theta, n is 0 1 2. अब चाहे इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना इसको, take possibility of lambda. So when lambda equals to 0, you got solution constant, and for other values of lambda which are n square, you also got the solution. Okay, so when you have lambda equals to 0, you got a constant solution, but that constant term will be adjusted by this cos. n को 0 फिट कर दो तो cos sin तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ से a constant आ जाएगा. So you can club these two together. Okay, so you can say, so n equals to 0 is also included. Or give a try to solve. Just OD है, solve करना है इसको. So now we solve a second OD. Second OD in R. This one equals to lambda. So this equation will be R square f double dash plus R f dash minus lambda f equals to 0. Okay, तो इसमें भी आपने दो वैल्यू फिट करनी है, लैम्डा फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 0. So what you have?
or you can say rf double dash plus rf, sorry, इसका इंटीग्रल कर लो. What will be the solution? बोलो solution क्या आएगा इसका? इसको आप ये भी लिख सकते हो, एग्जैक्ट डेरिवेटिव भी बन रहा है. So first you integrate, you got rf dash equal to constant. Again integrate. So on integrating, let me know the final answer. बोल दो भाई, कल भी किया था, सेम ही है ये. भूल जाते हो तुम लोग ना, ये किया था ना कल. ये चीजें सेम ही है. यू की जगह एफ है वहां पे. So fr equals to some constant c plus some constant d log of r. You can write constant a b c whatever you want. तो पहले मैंने a b लिखा है, इसमें हमने c और d लिख दिया. ये तो था लैम्डा जीरो के लिए. तो लैम्डा की दो पॉसिबिलिटी हैं, एक जीरो है एक पॉजिटिव है. So now for the second possibility, which is lambda equals to n square. So in that case, your equation will be lambda को फिट कर दो आप n square. तो ये आपके पास OD बन रहा है. ये लैम्डा तो कांस्टेंट है यहाँ पे. किस टाइप की OD है ये हमने पहले OD में पढ़ा था, इस टाइप की इक्वेशंस. अगर आपको ध्यान हो, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो. That this equation was the base of power series solutions. Can you name this equation? Cauchy-Euler type. या Cauchy-Euler. तो किस फॉर्म में सॉल्यूशन होते हैं इसके? y इक्वल टू एक्स पावर आर. मतलब आर, ये आल आर नहीं है जो उसमें आप आर एक्स की पावर समथिंग में होते हैं ना सॉल्यूशन इसके. तो यहाँ पे किस फॉर्म में होंगे? सो गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन ये है आपकी, आर स्क्वायर एफ डबल डैश प्लस आर एफ डैश माइनस एन स्क्वायर एफ इक्वल्स जीरो इज of Cauchy-Euler equation, which has solutions in the form, किस फॉर्म में सॉल्यूशन होंगे? वहाँ x पावर था, यहाँ r पावर कुछ भी होगा, r पावर अल्फा. ओके, तो ये इसमें फिट कर दो, r पावर अल्फा. सो देयरफॉर r स्क्वायर दो बार डेरिवेटिव करोगे तो अल्फा, अल्फा माइनस वन, r अल्फा माइनस टू, r अल्फा फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस एन स्क्वायर आर पावर अल्फा. सो सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा. तो चाहे आप सीधा फिट कर दो, अल्फा की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस एन,
तो सोल्यूशन किस फॉर्म में होंगे? सो एफ इक्वल्स टू सी आर पावर एन एंड डी आर पावर माइनस एन। अब ये जो सोल्यूशन है दे शुड बी एग्री विद बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, उस डोमेन में पहली बात तो ये वेल डिफाइन होने चाहिए। आल्सो दे शुड एग्री विद बाउंड्री कंडीशन, and from boundary condition you try to find constants. So let us put कौन कौन से सोल्यूशन हमने निकाले हैं उनको नंबर लगा देते हैं। सो दिस इज जी ए कंप्यूट किया था हमने। सो दिस इज फर्स्ट। सेकंड ये एफ था कांस्टेंट के लिए, लैम्डा 0 के लिए, एंड देन दिस इज लैम्डा इक्वल्स टू एम स्क्वायर के लिए। वी हैड ओके separated, but you can check from 2। अब सर्कल के अंदर है ना, तो R 0 भी होगा। R 0 होगा तो log R not defined, so we will discard this। ये हमारा solution नहीं है since this is not defined even। और सेकंड में भी when R goes to 0 this will not also define, or they become infinite you can say। so we will discard, यानी कि जो कंपैटिबल है उस डोमेन के अंदर वो ही सॉल्यूशन हमने कंसीडर करने हैं, बाकी को हम लीव कर देंगे। ओके, so we discard the solutions which are not finite। so log R and R power minus n will be infinite, at R equals to 0, and we discard them। so finally summing, अब आप क्या करते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके सम कर दोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करोगे। so summing the remaining solutions, so we get u r theta। तो एक तो कांस्टेंट आ रहा था, ठीक है, तो कांस्टेंट को मैं लिख रहा हूं जस्ट a0/2, और बाकी n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अब इसमें तो क्या यही बचेगा r पावर n, हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया, अपने r पावर n, और f और g को मल्टीप्लाई करना है, g में दोनों हैं cos और sin। ओके, सो r पावर n मल्टीप्लाई बाई, ये तो कांस्टेंट के लिए हो गया पहला, यू कैन से n इक्वल टू 0 कांस्टेंट सॉल्यूशन, और बाकी n 1 टू इन्फिनिटी में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, r पावर n, c r पावर n है, और यहाँ पे a cos n थीटा, b sin n थीटा। तो कांस्टेंट मैं a की लिख रहा हूँ, a की a n, ठीक है, और यू कैन से a इक्वल्स, a और c लिखोगे, a मल्टीप्लाई बाई c, उसको नया कांस्टेंट लिख दो, और यहाँ पे आएगा a मल्टीप्लाई विद d, d है ना इसमें, सॉरी c मल्टीप्लाई होगा इससे b से, c मल्टीप्लाई बाई b, c मल्टीप्लाई बाई b को नया कांस्टेंट लिख दो bn sin n थीटा। सो दिस इज माय सॉल्यूशन। आप इसको कांस्टेंट को आप a0 भी लिख सकते हो, पर जब आप फूरियर सीरीज लिखोगे, अगर आपको ध्यान हो कि
जो A0 का फार्मूला आता है उसमें सिर्फ 1/L आता है और बाकियों में आता है 2/L। तो दोनों को कंबाइन करने के लिए किया है ये। एक ट्वाइस है ना उसके कोफिशिएंट, ट्वाइस ऑफ अदर्स। तो अब आपको बस बाउंड्री कंडीशन यूज करना है। बाउंड्री कंडीशन में फूरियर सीरीज बनेगा, देन वी विल राइट सॉल्यूशन। ठीक है यहाँ तक? सो नाउ वी यूज बाउंड्री। बाउंड्री कंडीशन क्या है? सो नाउ वी यूज बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री में सर्कल में r इक्वल्स टू a है। वैसे अब चाहो तो उसको प्रिसाइसली, अच्छा मैंने ये लिखा नहीं इस साइड में, u, आप इसको लिख लेना u a थीटा। ठीक है, बाउंड्री में r इक्वल्स टू a हो गया ना, सर्कल की बाउंड्री पे r इक्वल्स टू a होगा ना, ये थीटा वेरी करेगा। So at boundary we have u a theta, which is h of theta equals to a0 by 2 constant and equals to 1 to infinity r power n a n cos n theta plus b n sin n theta। ठीक है, ये तो फार्मूला था, इसमें r को आप a फिट कर दो और थीटा तो थीटा ही रहेगा। So this is which is Fourier series। तो फूरियर कोफिशिएंट क्या होंगे? फूरियर कोफिशिएंट ये cos के साथ क्या आ रहा है? an सॉरी स्मॉल an पावर an। ओके, तो an की वैल्यू क्या होगी? अब ये फूरियर एक्सपेंशन 0 to 2 पाई है, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई h थीटा आप और नोटेशन यूज करना तो h ऑफ फाई cos ऑफ n फाई d फाई। अब जो भी लिखो, थीटा लिखो या फाई लिखो, तो an को इसको इधर ले जाते हैं, 1/पाई भी आता है यहाँ पे, 1/पाई और सेकंड कोफिशिएंट bn 1/पाई an 0 to 2 पाई h फाई sin n फाई d फाई। थीटा मैंने जानबूझ के लिखा, आगे हम थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। अब डेफिनेट इंटीग्रल तो लिमिट पे डिपेंड करता है ना, आप अंदर कुछ भी लिखो, फाई साई थीटा जो मर्जी लिखो आप, सो दैट ओनली डिपेंड ऑन लिमिट्स। तो यानी कि जो भी वैल्यू आएगा इनका कोफिशिएंट का, सो यू विल फिट हियर, an और bn की वैल्यू डाल दोगे, सो यू विल गेट, वैसे डालना नहीं हमने, सो यू गॉट an एंड bn। तो an और bn मिल गए, तो यहाँ पे an और bn की वैल्यू फिट कर दो। ठीक है, a0 भी वैलिड है इसमें, सो दैट n इज रनिंग फ्रॉम 0 1 2 एटसेट्रा। a0 भी इसी से मिलेगा, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इफ यू वांट टू राइट
final solution you can say. So these are the coefficients, and this fourth, this is a solution. And we have used a heading that Poisson formula. तो थोड़ा सा हम आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे. We will simplify 4. जो 4 है उसको हम दोबारा से सिंप्लीफाई करते हैं एक बार. वैसे आर्टिकल अगर सोल्यूशन की बात करें, सो दिस कंप्लीट्स द आर्टिकल, सो यू गॉट द सोल्यूशन. नाउ वी कैन, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि द सीरीज जो सोल्यूशन में आ रहा है, द सीरीज 4, दिस वन सोल्यूशन, दिस सीरीज 4 can be summed explicitly, यानी आप इसको सम अप कर सकते हो. अब उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर दिस we substitute the values of a n and b and then simplify. फिट कर दो वैल्यू उसमें. So therefore u r theta, पहला कोफिशिएंट 0 to a0 की वैल्यू, so that will be h5, ये वाला कोफिशिएंट, n equals to 0, तो 1 by pi बचेगा यहाँ पे h5 ये cos. Zero to 2 pi, d5 by 2 pi, and then the remaining series n equals to 1 to infinity r power n pi a n. ये 2 कहाँ से आया? a0 by 2 था ना, पाई को जस्ट अंदर ले जाओ, पाई को मैंने अंदर लिख दिया और वहाँ पे मैंने a0 by 2 लिखा था, तो दिस इज a0 by 2 फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म rn by pi an है ना, इसको आप इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हो. इंटीग्रल 0 to 2 pi, इंटीग्रल यही था h5. अब यहाँ पे आ जाएगा cos n phi, तभी मैंने इसको phi लिखा था, cos n phi cos n theta प्लस. वैसे तो आप सिंप्लीफाई करके बाद में कोफिशिएंट फिट करते हो, बट मैंने एक थीटा की जगह कोई नया नोटेशन यूज कर लिया, सो आई कैन सब्स्टिट्यूट इनसाइड. तो ये वैल्यू फिट कर दो सारी अंदर. ये वैल्यू किसकी है? h5, h इज ए फंक्शन ऑफ phi, सॉरी, ये वाली वैल्यू यहाँ से h5 cos n phi, ठीक है, 1 by pi n, और ये भी सेकंड वाले sin n phi. तो cos के साथ cos n phi आ जाएगा, sin के साथ sin n phi आ जाएगा, n phi. सो इसका फायदा होगा कि यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर. 0 to 2 pi, आप h5 को कॉमन लिख सकते हो, दोनों को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो. सो 1 plus 2 times r by a, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं. अब ये फार्मूला क्या बनेगा? cos a cos b plus sin a sin b. So you can write it cos a minus b, cos n theta minus phi. So put a big bracket here, and d phi by
2 पाई को मैं बाहर लिख रहा हूँ। यहाँ पे सेकंड वाले में 2 नहीं था, फर्स्ट में तो ये 1/2 था, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ 2 लिख दिया मैंने। सो दैट यू कैन राइट d5/2 पाई आउटसाइड फ्रॉम बोथ। 1/2 पाई है, इसको चाहे आप शुरू में भी लिख सकते हो, कांस्टेंट है ये। Okay, so what we have used, we have cos a cos b plus sin a sin b, that is equals to cos a minus b. So अब जो बिग ब्रैकेट में टर्म है ये वाला, इसमें इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। So now we will simplify this term in big bracket. So also I'm simplifying this one, 1 plus 2 साइन कॉस आ रहा है ना, तो आप साइन कॉस आ रहा है तो e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हो, आप ये यूज कर सकते हो ना, e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये क्या बनेगा 2 cos थीटा। तो ये जो 2 टाइम्स कॉस आ रहा है, 2 टाइम्स कॉस, इसकी जगह आपने ये लिख देना e की पावर आयोटा थीटा प्लस, अब थीटा की जगह ये एंगल आ जाएगा जो यहाँ पे एंगल है आपके पास। ओके, सो यूज दैट फार्मूला टू सिंप्लीफाई समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, 2 को तो यहाँ इसके साथ रख लो चाहिए, 2 टाइम्स, सो आई कैन राइट r बाई a e की पावर आयोटा, आयोटा थीटा की जगह क्या आ जाएगा n थीटा माइनस 5, फर्स्ट इंटीग्रल, फर्स्ट सम सॉरी, और सेकंड सम भी सेम, अलग अलग सेपरेट कर दो इनको। सेकंड में आ जाएगा e की पावर माइनस आयोटा, आयोटा थीटा, और थीटा जो रेड वाला फार्मूला है इसमें थीटा की जगह n थीटा माइनस 5। सो फर्दर यू कैन राइट इट, तो ये जीपी बन जाएगी, ये दोनों जीपी हैं, इनफाइनाइट सीरीज है। जीपी का सम क्या होता है, आर फर्स्ट टर्म आर बाई ए आएगा, फर्स्ट टर्म आर बाई ए, 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो आर बाई ए भी कैंसिल हो जाएगा, ये एलसीएम लेने से, जस्ट राइट आर ए यहाँ लिख दो आप, आयोटा, सॉरी ध्यान से लिखना है इसको, 1 प्लस जीपी का सम आर बाई ए की पावर आयोटा थीटा माइनस 5, नीचे 1 माइनस आर बाई ए पावर आयोटा थीटा माइनस 5, और सेकंड सीरीज का सम आर प्लस, वहाँ पे माइनस आ जाएगा, आर बाई ए, सो 1 माइनस आर बाई ए की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस 5। अब आप इस ए को गायब कर दो यहाँ से, आर बाई ए था, यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ पे ए डाल दो आप, है ना, एलसीएम लेके, फिर आपने पूरे का एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करना है, दिस इज जस्ट सिंपल कैलकुलेशन। एलसीएम ले लो ये दोनों फैक्टर, ये मल्टीप्लाई है, पावर कुछ नहीं, मल्टीप्लाइड है, नीचे एलसीएम लोगे फिर इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई भी होगा नीचे ना, सो व्हाट यू राइट, मल्टीप्लाई करना, मैं मल्टीप्लाई करके आंसर लिख रहा हूँ, नीचे जो दोनों करोगे, e की पावर आयोटा थीटा माइनस 5
plus e की power minus iota theta minus phi. Just multiply these two factors. Okay, minus 2ar plus r square, और न्यूमरेटर में जो वैल्यू आएंगी वो आएगा ए स्क्वायर माइनस ए आर, इसके साथ आएगा ए आर के साथ ई की पावर आयोटा थीटा माइनस फाइव प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस फाइव. जस्ट टेक एलसीएम, एक माइनस ए आर आ जाएगा, एक प्लस ए आर आएगा. ई की पावर आयोटा थीटा माइनस फाइव प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस फाइव, then minus 2 r square, and you can check these two will cancel out this and this. So you just got numerator a square minus, एक टर्म और मिस हो गया, इसमें प्लस, यहाँ पे प्लस आर स्क्वायर भी आएगा. सो आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर, और नीचे भी सिंप्लीफाई होगा डिनोमिनेटर भी 2ar ई की पावर आयोटा थीटा प्लस माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा. इसको दोबारा से आप लिख सकते हो कॉस थीटा माइनस फाइव प्लस आर स्क्वायर. सो वी जस्ट गॉट द सॉल्यूशन यू आर थीटा. अब इसका फायदा क्या हुआ कि आपको एक सिंगल फार्मूला मिल गया है. उसमें दो थे ना, साइन और कॉस. सो यू हैव कंबाइंड बोथ यूजिंग एक्सपोनेंशियल ई की पावर आयोटा थीटा. उसको यूज करके दोनों को आपने साइन और कॉस कंबाइन हो गए. ठीक है, तो सॉल्यूशन तो अब यही था आपका. अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई किया बिग ब्रैकेट वाले को, इसको बाकी इसको एच फाइव डी फाइव बाई टू पाई से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो. दैट इज योर फाइनल सॉल्यूशन. सो यू कैन राइट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आउटसाइड, सिंस इंटीग्रल इज विद रिस्पेक्ट टू एंगल, तो ये अंदर रहेगा. एच फाइव डिवाइड्स एच फाइव तो वहाँ था, बाकी नीचे ये टर्म है 2ar cos थीटा माइनस फाइव प्लस आर स्क्वायर, और डी फाइव बाई टू पाई. एंड दिस सिंगल फार्मूला, single means that you have combined sine and cos together. So this single formula is called Poisson formula. Poisson's formula. So this replace जो तीन इक्वेशन बनी थी an, bn एंड फोर्थ, तीनों को कंबाइन करके इसने ये फाइनल कर दिया. ठीक है, तीनों ही कंबाइन होगी. जस्ट सॉल्यूशन किससे निकालना, जस्ट इंटीग्रेट इट. तो प्रॉब्लम्स में जब आप सर्कल पे सॉल्व करो, जस्ट यूज दिस फार्मूला. चाहे आप वो यूज करो, दैट इज द सेम थिंग, बट दिस इज द इजीएस्ट वन. सो दिस कंबाइन थ्री फार्मूला इनटू अ सिंगल वन. एंड और जो इंटीग्रल की वैल्यू है दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. जो हार्मोनिक फंक्शन जो सॉल्यूशन मिला है, सॉल्यूशन इंटीग्रल कहाँ कर रहे हैं, बाउंड्री पे. ओके, 0 to 2 pi. So just do the integral on boundary. So this formula express any harmonic function inside a circle in term of its boundary value. So you can note this important point. So this formula write any harmonic function inside a circle in term of its boundary value. So I am not writing this. You can say this is 2 pi out. आप इसको constant को बाहर भी लिख सकते हो. But we will also write one more simplification of this formula in more geometric way.
in next class. So you can also write this formula in one different form. Okay. Okay, until this point. Also, there is one important fact about this equation. You can verify this fact. If I take, let us say I take constant one, तो क्या ये solution है इस equation का? You can check. बोलो भाई, satisfy करेगा कि नहीं करेगा? The second derivative of constant 2 times, that will be 0. So 0 equals to 0, satisfy करेगा? करेगा कि नहीं? Similarly, if you take x and y, ये satisfy करेगा इसको? You can check. Second derivative of x, 0. With respect to y, that is also 0. So satisfy कर रहा है, x भी कर रहा है, y भी करेगा, नहीं? And more, you can say this will also satisfy. Second derivative of x square minus y square with respect to, so this will give you 2. Ux will be 2, uyy will be minus 2, so 2 minus 2 will be 0. And more importantly, also this one, 2xy, you can check. So there is a pattern. कोई पैटर्न दिख रहा है आपको इसमें भी? So we talk unique solution when you put conditions. Okay, so when you have a boundary value problem, you will get a unique solution. But when you don't have conditions, you have many solutions. You can check all these functions satisfy this equation. तो पैटर्न आपके पास ये बन रहा है. इसका रियल पार्ट देखो आप. Also see its imaginary part. n equals to 0. n equal to 0 पे क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा 1. That is the solution. n equals to 1, x plus iota y, real part as well as its imaginary part satisfy the equation. N equals to 2, but what you will have? X plus iota y square. Real part क्या होगा इसका? And imaginary part 2xy. And even you can check cubic. क्या बनेगा फार्मूला इसका? Say it. मेरे को नहीं याद, बोलो क्या बनेगा? हाँ? A cube plus B cube plus 3A square B Plus 3 x square iota y. आयोटा के साथ क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट बोल दो. आयोटा 3xy स्क्वायर. पहले सिंप्लीफाई करो. बताओ आयोटा के साथ क्या है? 3x square y आएगा. 3x स्क्वायर y. Yes sir. ठीक लिखा है? नहीं, आटा के साथ सिर्फ 3x square y आएगा. आयोटा के साथ 3x स्क्वायर y आएगा. ओके. सो इमेजिनरी पार्ट ये, और यहाँ पे आएगा 3xy स्क्वायर माइनस आएगा ना. और ये y क्यूब वाली टर्म के साथ भी आटा आएगा, क्योंकि क्यूब है ना, आटा की क्यूब माइनस आटा. तो इसको भी डिस्कार्ड कर दो. तो रियल पार्ट बोलो क्या आएगा? रियल पार्ट ये आएगा. एंड इमेजिनरी पार्ट
minus y cube plus 3. This one. Yes, sir. So you can check. These two also satisfy the equation. और आप अगर पोलर फॉर्म में लिखना चाहो so x plus iota y, so what do you put? R x equals to r cos theta plus iota r sin theta. So r power n cos theta plus iota sin theta power n. इसको क्या लिख सकते हो आप? e की पावर आयोटा n थीटा, है ना? तो आपने देखा ये सोल्यूशन इस फॉर्म में आ भी रहे हैं ना? फिर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे सो यू विल सम अप समथिंग लाइक दैट and n will goes up to infinity starting from 0 or whatever one. So you have seen solution earlier r power n. नहीं आ रही? आ तो रहे हैं पीछे देखो. Forget everything. uh, what you have, this one. साथ में साइन कॉस आ रहे हैं और इनको मैंने कंबाइन कर भी दिया है इसमें. ठीक है. अब कॉस, इसमें कॉस आ रहा है कॉस एन थीटा, तो ये सूटेबली आ जाएगा यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट जो आप लिखोगे इसका e की पावर आयोटा एन थीटा. व्हेन यू पुट बाउंड्री कंडीशंस यू कैन फाइंड अ यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा? विद बाउंड्री कंडीशंस. तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से रिलेशन है इसका, दैट्स व्हाई वी से हार्मोनिक फंक्शंस. तो ये सॉल्यूशन क्या है? और अदर सेंस में अगर कहो सो दे आर पॉलिनोमियल कांस्टेंट, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स, है ना, 3 डिग्री पॉलिनोमियल. सो दिस इक्वेशन हैज पॉलिनोमियल सॉल्यूशन एंड these polynomials are in two variable x and y. Anyway, so we don't had much time, so we will continue tomorrow.